ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਨਿਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ, this is velocity of light, nu is frequency, and wave nature ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ c is equal to lambda into nu ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ E is equal to h nu ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਰਮਰ ਐਂਡ ਡੇਵਿਸਨ। ਜਰਮਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਰ ਐਂਡ ਡੇਵਿਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਦੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ and black body radiation। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਇਜੈਕਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਰਡਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਲ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ
ਜਰਮਰ ਤੇ ਡੇਵਿसन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ that is famous with D Broglie wave equation, D small ਪਾਣਾ B capital ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, D small ਹੁੰਦੀ ਹੈ, B ਅੱਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ। D Broglie wave equation ਜਾਂ D Broglie equation ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਆਲਸੋ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Planck's quantum theory, E is equal to h nu. Say this is equation number 1. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ E is equal to h nu ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, EINSTEIN, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, that is E is equal to mc square, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, E is equal to mc square। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2 you will get, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ h nu is equal to mc square, h nu is equal to mc square। we know that, say this is equation number 3, we know that c is equal to lambda into nu, the nu will be equal to c over lambda। therefore equation 3 can be written as h is equal to h into ਨਿਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ। ਸੀ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mc ਸਕੁਏਅਰ। ਓਕੇ, ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ h ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mc। ਇੱਥੇ c ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ c ਨੂੰ ਅਸੀਂ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ h is equal to mv into lambda, or lambda may be equal to h over mv। this is
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज व्हाट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और m इंटू वी इज इक्वल टू p, वेयर p इज मोमेंटम। तुसी फिजिक्स पढ़िया होएगा, m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम के बराबर होंदा है। और लैमडा में भी h ओवर p, ये दो रिजल्ट जोड़े ने वो आए ने, इन्होंने तुसी याद रखना। कमिट टू योर मैमरी, अपनी मैमरी में कमिट कर लो, याद करो उन्होंने। ये दो रिजल्ट जोड़े ने वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ने। दोबारा समझ लो, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਡਿਊਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿੱਤੇ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली जी कि वेव नेचर दसदी सी E इज इक्वल टू एच न्यू, रिजल्ट जोड़ा प्लैंक ने दिता। आइनस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जी कि सानू पार्टिकल नेचर बारे दसदी सी, दैट वाज E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉगली ने दोवां नू इक्वेट किया, इक्वेट करांगे E ना E कट जाएगी, H न्यू विल बी इक्वल टू MC स्क्वेयर, तो न्यू की वैल्यू असीं इत्थे कड्ढी है। लाइट दे C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैमडा इंटू न्यू, तो न्यू इज ऑटोमैटिकली इज इक्वल टू C ओवर लैमडा। इनू असीं इत्थे लैमडा की वैल्यू दे विच पुट कर दिता, तो यह बन जाएगा H इंटू C ओवर लैमडा इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। C ना C कट हो गया, तो इनू जो तुसीं सिंपलीफाई करते हो तो यह लैमडा इज इक्वल टू H ओवर MV आएगा रिजल्ट। यह डेरीवेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल डेरीवेशन है, पर ये न्यूमेरिकल्स जोड़े ने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। ये न्यूमेरिकल मैं तुहानूं PDF सेंड करांगा, तुसीं वो न्यूमेरिकल जोड़े करने होणगे। एक दो एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने मैं सॉल्व करके भेजांगा, या मैं हुण इत्थे कर देना। फॉर एग्जाम्पल हुण साडे कोल रिजल्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज लैमडा इज इक्वल टू H ओवर MV। या तो यह रिजल्ट यूज़ होएगा या H ओवर P, जिथे M इंटू V वो मोमेंटम की गल आएगी। मैं एक स्टेटमेंट एक दो न्यूमेरिकल्स जोड़े ने मैं सॉल्व कर देना। फॉर एग्जाम्पल छोटा जिहा न्यूमेरिकल कर दे, what will be the wavelength of a ball what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg, of mass 0.1 kg, moving with a velocity of with a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second। देखो मैं इत्थे तुहानूं मैथड दसांगा कि न्यूमेरिकल जिहड़ा सॉल्व किवें करीदा है। न्यूमेरिकल च हमेशा कुछ चीज़ां दित्तियां हुंदियां ने तो कोई ना कोई चीज़ कढ़नी होंदी है। जड़ियाँ चीज़ां जड़े पैरामीटर गिवन ने सब तो पहले उन्होंने लिखीदा की चीज़ां जड़ियाँ ने वो गिवन ने। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.1 kg। वेलोसिटी गिवन है V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। You have to find out wavelength, wavelength find out करनी। wavelength find out करनी तो फॉर्मूला साढ़े कोल है लैमडा इज इक्वल टू
H/mv। देखो सब तो पहले पैरामीटर्स लिखने, जड़ियाँ चीज़ां गिवन ने तो जो कढ़ना वो के क्वेश्चन मार्क दे के फिर फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने तो बाद फिर वैल्यूज़ जड़ियाँ ने वो तुसीं इत्थे पुट करनियां ने। एच की वैल्यू या तो गिवन होएगी या तुहानूं याद रखनी पेगी। एच की वैल्यू तुसीं पढ़ी हुई है। एच की वैल्यू कितनी यूज़ करते हो? 6.62 × 10⁻34 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये याद रखनी पेगी। यहाँ स्टेटमेंट जो गिवन होएगी यहाँ तुहानूं याद करनी पेगी। वैल्यूज़ पुट करिए विद यूनिट्स 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 0.1 kg इंटू 10 वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। हुण देखो यदि कटिंग है वो तो तुसीं सॉल्व कर ही लेना। मैं तुहानूं जस्ट यूनिट दस रहा कि यूनिट लिख के यूनिट नूं किवें कटना। देखो जो कॉन्सटेंट गिवन हुंदा है सानू बाकी दी स्टेटमेंट दे भी यूनिट जड़े ने, बाकी दे पैरामीटर्स दे यूनिट भी उहदे हिसाब नाल जड़े ने वो चेंज करने पैंदे। जे इत्थे तो बाई चांस ही हुण kg च गिवन सीगा ते एच च भी kg है, एच दी वैल्यू च भी kg आ रहा तो मास भी तुहानूं kg च गिवन सीगा। ते जे मान लो ग्राम्स दे विच हुंदा ते उहनूं kg च कन्वर्ट करना पैना सी। ठीक, हुण इत्थे पहले kg ने kg कट जाएगा, मीटर नाल 1 मीटर कट गया, पर सेकंड नाल पर सेकंड कट गया। आंसर वुड बी इन मीटर। आंसर जड़ा वो मीटर दे विच आएगा। कटिंग तुसीं कर ही लेनी है, कैलकुलेटर्स आर अलाउड। इहदा जड़ा आंसर है वो आएगा 6.62 × 10⁻34 मीटर। इहदा आंसर आएगा। हुण न्यूमेरिकल सिंपल है, जिहदे च मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा तुसीं फाइंड आउट करना है। हुण इत्थे किसी तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, जिथे वख-वख चीज़ां जड़ियां ने वो फाइंड आउट करनियां होणगियां। इहदे च कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल भी होंदे ने। लेट अस सी। हाँ जी, देखो इत्थे स्टेटमेंट देखो, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए हीलियम एटम at 27 degrees Celsius moving with a velocity of 2.40 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हुण देखो इत्थे गलबात जिहड़ी है हीलियम एटम दी है। मैं तुहानूं जड़ियां टाइप्स डिफरेंट टाइप्स आउणगियां, मैं तुहानूं वो जड़ियां टाइप्स ने वो करवा दांगा। इहदे विच हीलियम एटम की गलबात है कि हीलियम एटम जे प्रेजेंट है तो फिर किस तरह करना है। मतलब इत्थे हीलियम एटम हो सकता है, कोई भी गैसियस का एटम हो सकता है, या कोई एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। उसका मास किस तरह कैलकुलेट करना। 27 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर का कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ जड़ा वो भुलेखा पाने वास्ते होंदा है। इस करके टैंपरेचर का तुसीं ख्याल ही नहीं करना। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी है 2.40 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली वेवलेंथ असीं फाइंड आउट करनी है। साढ़े को फॉर्मूला है लैम्डा = H/mv। एच की वैल्यू तो चलो सानू पता है कि कॉन्सटेंट है, कि वैल्यू जी पता है H = 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर लेकिन मास नहीं पता। हीलियम एटम का मास जड़ा है वो पहले कैलकुलेट करना पेगा। इत्थे हुण जिहड़ा फस्ट लैसन दे विच मैं तुहानूं काम करवाया सीगा मोल कंसैप्ट, इत्थे वो लगेगा। एक हीलियम एटम का पहले मास कैलकुलेट करना पेगा। एक हीलियम का एटम का मास कितना होंदा है। मैं मोल कंसैप्ट लगावांगा, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लो कि 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 आर्टिकल्स के बराबर सीगा, विच इज़ अगेन इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हीलियम एटम का असी मास पता करना, एक हीलियम एटम का, तो हीलियम 2 4 होंदा, 2 का एटॉमिक नंबर, 4 का मास नंबर।
जे मास नंबर 4 है तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? ਇਹਦਾ ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम। इट मीन 4 ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ग्राम है तो ਅਸੀਂ एक ਐਟਮ ਦਾ फाइंड आउट करना। इकाई लगा ਦਿਓ 6.023 into 10⁻23 atoms of helium having mass is equal to 4 ग्राम। एक ਐਟਮ ਦਾ फाइंड आउट करना। एक ਐਟਮ ਦਾ कितना हो जाएगा? उत्ते वड्डी रकम थले 1 है। 4 डिवाइड बाय 6.023 into 10⁻23 ग्राम। हुण इन्ना एक हीलीयम के एटम का मास पता लग गया कि इन्ना हैगा। इनू तुसीं अगे सिंपलीफाई कर सकते हो। पर लेकिन एक गल होर मेरी याद रखो, मैं तुहानूं पहले कह चुका कि एच की वैल्यूज़ दे जिहड़े यूनिट्स हुंदे ने सानू बाकी दे पैरामीटर्स दे यूनिट्स भी जिहड़े ने उस हिसाब नाल कन्वर्ट करने पैंदे। जे ए ग्राम्स दे विच है तो इन्हां नूं भी केजी च पहले कन्वर्ट करना पएगा। 1 ग्राम च कितने किलो? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। इट मीन ए कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। हुण यह बन जाएगा के जी दे विच। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਆਏਗਾ। मास विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 kg। ठीक, हाँ जी। इनू कैलकुलेट करोगे मास जिहड़ा आएगा 6.64 इंटू 10⁻27 kg। हुण लैमडा जिहड़ा फाइंड आउट किया जा सकता है। बस उस तरह ही कर देना। लैमडा विल बी इक्वल टू H/mv। H की वैल्यू कितनी? 6.62 इंटू 10⁻34 kg किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाई मास कितना आ गया? 6.64 इंटू 10⁻27 kg। तो वेलोसिटी कितनी सी? 2.40 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का यूनिट कट दो, केजी ना केजी कट जाएगा, मीटर नाल 1 मीटर कट जाएगा, पर सेकेंड ना पर सेकेंड कट जाएगा, मीटर के आंसर आ जाएगा। अगे कैलकुलेट तुसीं कर ही सकते हो कैलकुलेटर के उत्ते। ठीक है। एक टाइप इस तरह की होएगी जिथे इस तरह एटम जिहड़े ने उन्हां दा मास जिहड़ा वो तुहानूं पहले फाइंड आउट करना पएगा। किधरे किधरे दे वैल्यू जिहड़ी है वो गिवन ही होंदी है, पर लेकिन किधरे किधरे वैल्यू जिहड़ी इस तरह फाइंड आउट करनी पैंदी है। मास जो भी कैलकुलेट करना है तुसीं मोल कंसैप्ट लगाओगे। मोल कंसैप्ट दे विच मास तुहाडे कोल पहले ग्राम्स दे विच आएगा, ग्राम्स नूं केजी जरूर कन्वर्ट करना है क्योंकि एच की वैल्यू दे विच असीं केजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इहनूं नोट कर लो। दैन नैक्सट टाइप आ जाती है। देखो नैक्सट स्टेटमेंट है, यह न्यू टाइप है। अ मूविंग इलैक्ट्रॉन हैज़ 4.55 इंटू 10⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइंड आउट इट्स वेवलेंथ। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह न्यूमेरिकल थोड़ा जिहा लेंथी भी हुंदा है और इंपॉर्टेंट भी हुंदा है। ਇਹਦੇ 'ਚ गल इलैक्ट्रॉन की है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी हुण तक असीं काइनेटिक एनर्जी का कोई काम किया नहीं, उसी उहदी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। इलैक्ट्रॉन की गलबात है। मास इलैक्ट्रॉन का सानू पता ही है, याद करना पएगा या याद होना चाहिए या गिवन होएगा। यह हुंदा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी नहीं पता, एच की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। पर इत्थे काइनेटिक एनर्जी गिवन है 4.55
इंटू 10⁻⁻25 जाउल गिवन होएगी जाउल च तो एक जाउल जिहड़ा किलोग्राम मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर के बराबर होंदा है। इहनूं तुसीं इत्थे ही लिख लेना 4.55 इंटू 10⁻⁻25 क्योंकि 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर, किलोग्राम मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर के बराबर होंदा है। इहनूं तुसीं इत्थे ही जिहड़ा वो कन्वर्ट कर लेना किलोग्राम दे विच आ जाएगा साडे कोल किलोग्राम मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर। हुण वेलोसिटी नहीं पता, फॉर्मूला साडे कोल है H इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। मास पता पर वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी की थां ते की पता काइनेटिक एनर्जी। हुण इस काइनेटिक एनर्जी तो असीं वेलोसिटी तक पहुँचना किस तरह पहुँचांगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्केयर। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर स्केयर पर सैकेंड स्केयर इज इक्वल टू हाफ। मास कितना गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वी स्केयर। हुण तुसीं इत्थों वी कैलकुलेट करोगे, पहले वी स्केयर कैलकुलेट करोगे, फिर उसका स्केयर रूट लोगे, तुहाडे कोल वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी इत्थे भरोगे, फिर लैम्डा जिहड़ा वो फाइंड आउट करोगे। ए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी जिहड़े ने वो इंपॉर्टेंट ने, आ सकते ने, लंबे होंदे ने। फिर तो सुन लो काइनेटिक एनर्जी किवन सी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू असीं इत्थे लिखी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर। हाफ मास पता है वी स्केयर, पहले तुसीं वी स्केयर कैलकुलेट करोगे, वी स्केयर कैलकुलेट करके उसका स्केयर रूट कढोगे, स्केयर रूट कढ़ के वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू तुसीं इत्थे फॉर्मूले दे विच पुट करोगे तो लैम्डा जिहड़ा फाइंड आउट करोगे। मैं तो सिर्फ मैथड दस्सिया, अगे कैलकुलेशन तुसीं आप करनी होएगी। बाकी इहदी अनसॉल्वड एक एक्सरसाइज जिहड़ी है वो मैं जरूर नाल तुहानूं कल मैं सेंड जरूर कर देवांगा, वो तुसीं जरूर ट्राई करियो। ठीक है, अज दा लैक्चर इन्ना ही। डी ब्रोकली इक्वेशन तुसीं कीती है, ड्यूल नेचर कीती है। नैक्सट लैक्चर दे विच इस तो अगली डेरीवेशन जिहड़ी है वो आएगी, वो बारे डिस्कशन करांगे। ठीक है, इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो तो व्यू जरूर करिया करो। तुहाडे व्यूज़ तो ही सानूं पता लगता कि तुसीं यह लैक्चर देख चुके हो तो नैक्सट लैक्चर जिहड़ा असीं उहदी प्रैपरेशन करांगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।